गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे बात करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एंड चैप्टर 2 और पार्ट 1। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने आपसे ऑलरेडी बातें करी कि हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ने क्या कहा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने ये बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों ही फिक्स नहीं होगी, पर simultaneously both change in position and change in velocity cannot fix। तो दोनों एक साथ फिक्स नहीं हो सकता। हालांकि बोर्स ने कहा था कि दोनों एक साथ फिक्स हो जाएगा। रेडियस वी कैन मेजर द रेडियस, वी कैन मेजर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट, वी कैन मेजर their velocity also, but the Heisenberg tell that if the electron is microscopic, then it is not possible to measure simultaneously change in position and change in velocity of the electron. That is the uncertainty in position and uncertainty in velocity. So after that we know about the electrons having the if we find their position, the velocity are different. So that rules are also good, but some little difference in the Heisenberg principle. He cannot explain the electron as a 3D electron as a three-dimensional body. But Schrodinger wave equation, he tells that the probability of finding electron in orbit. This is the probability of finding electrons in the orbit. Means how much the probability of finding electrons, how much electrons will be found in the orbit, in the first orbit, in the second orbit, in the third orbit. This is noted by the Schrodinger wave equation. This is the equation. एंड ये इक्वेशंस आपको एडवांस लेवल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे सिर्फ जेईई मेंस की बातें करूं तो वो मैं दिखा रहा हूं, और एडवांस लेवल के लिए अगर आपको श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वहां से आपको इसके वेव इक्वेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि वहां पे आपको श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन चाहिए, तो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट हुआ करेगा। एडवांस लेवल की बातें मैं करूंगा तो, और इसमें बहुत ज्यादा रोल है इसका। ठीक है, मैं काफी इसमें डीप बातें कर सकता हूँ। इवन में इसके ऊपर मैं आपको 2 से 3 दिन क्लासेस होते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट, जब हम ऑर्बिट की बात करेंगे तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से जो कंक्लूजन था वो चीज आपका निकला एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपकी किताब में लिखा होगा हैमिल्टन इक्वल टू आइगन, तो वो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और वो चीज आपका आउट ऑफ सिलेबस है। वहां पे आपको सिर्फ एनसीईआरटी में 2 टर्म दे रखा है, हैमिल्टन इक्वल टू आइगन। ठीक है, हैमिल्टन और साई, हैमिल्टन की साई, आइगन के साई, और साई मीन्स क्या, वो वर्क फंक्शन, वो चीज मैं डिस्कस करूंगा आपसे। तो what is atomic orbitals? Atomic orbitals is the address of electron. Definition of the atomic orbitals. What is atomic orbitals? Atomic orbitals is the address of electron in the atom where the electrons are found. So atomic orbitals further divided into 4 types, right? The first one is principal quantum number. Principal quantum number. Second one is azimuthal quantum numbers. Third is
magnetic quantum number, and fourth is spin quantum number. This is the four types of the atomic orbitals, and we discussed later. Before that, we discussed about the orbitals, discussed about the shape of the orbitals, how what is the shape of orbitals, because principal quantum number denoted by a small n, azimuthal quantum number denoted by a small l, magnetic quantum number denoted by a small m, and a spin quantum number denoted by s. These are the symbols of the four quantum numbers. Okay, write down this one. After that, we will discuss. Okay, fine. So Schrödinger have told that Schrödinger ने ऑर्बिटल्स के शेप बताए, आखिर ऑर्बिटल्स होगा क्या. ठीक है, तो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं और सबसेल्स क्या होते हैं, इस सब की जानकारी इन्होंने बताई. आखिर हमने सेल पढ़ा, लोगों ने क्लास 10 तक क्या पढ़ा, सेल. सेल क्या होते हैं, तो सेल में हमने देखा है भैया, हमने जो पढ़ा है कि सेल मीन्स के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, हम लोगों ने यही पढ़ा है. तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2, maximum number of electrons in L cell 8, maximum number of electrons is 18, maximum number of electrons is 32. तो इसके ड्रॉबैक्स आपको मिलेंगे. पोटेशियम और कैल्शियम में रिपीटेशन ऑफ 8 होगा, आपको याद आ रहा होगा. तो ये चीजें प्रिमिटिव हो गई, क्लास 10 तक हो गई. अब आपको पढ़ना है सबसेल. अब सबसेल में पढ़ना है आपको SPDF. ठीक है, तो S में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, S सबसेल 2. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की मैं बातें कर रहा हूं. 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द P सबसेल, 6 इलेक्ट्रॉन इन द D सबसेल, 10 इलेक्ट्रॉन्स इन द F subcell, 14 electrons. This is the electrons present in the S subcell, present in the P subcell, present in the D and F. अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले हम इसके अकॉर्डिंग किया करते थे, अब आपको इसके अकॉर्डिंग करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. बहुत ही आसान होगा सबसेल के अकॉर्डिंग. ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूं. अब मैं आपसे बातें करूंगा कि इन सबसेल के शेप कैसे है. ठीक है, तो आइए, शेप्स ऑफ सबसेल. तो पहला बातें करेंगे एस सबसेल. एस सबसेल 3D प्लेन, बिकॉज श्रोडिंगर ने 3D ही बताया. श्रोडिंगर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, 3D होंगे. एस सबसेल 3D प्लेन पे कैसा रहेगा, देखिए बिल्कुल स्फेरिकल. ठीक है भाई, जेड मैं आपको एक्सिस मान के दिखा रहा हूं, वाई एंड एक्स, बिल्कुल स्फेरिकल होगा, स्फेरिकल शेप मिलेगा. या जो भी आप देख रहे हैं, ये सबसे स्फेरिकल. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम 99.9% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, कंप्लीटली ऑक्युपाइड रहेगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहेंगे. ये आपका एस सबसेल होगा. ठीक है, स्फेरिकल शेप आएगा. बातें क्लियर. दिस इज शेप ऑफ द एस सबसेल. अब मैं आपसे बातें करूंगा पी सबसेल कैसा दिखता है. मैं आपको इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूं, शेप कैसा होगा. ठीक है, फिर मैं आपको दिखाऊंगा इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कैसे भरे गए. सेकेंड चीज, बिल्कुल आसान हो जाएगा, बिल्कुल आसान. आप इसके बारे में सेकंड देख सकते हैं. सेकंड चीज क्या होगा, पी सबसेल. पी सबसेल, जब भी हम पी सबसेल की बातें करेंगे तो ये चीज मेरा डंबल शेप हुआ करेगा. ठीक है, इसका नाम है
डम्बेल, डम्बेल शेप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हमारा एक में भरेगा और एक हमारा वैकेंट रहेगा, ठीक है। ओरिजिनल फिगर जो आपकी बुक में दे रखा है वो आपका ऐसे बना रखा है, ये देखिए ओरिजिनल फिगर ऐसा दे रखा है, तो ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, बिल्कुल। तो ये पी सबसेल है, पी सबसेल डम्बेल शेप में इस तरह के बनेंगे। अब एक्सिस के अलॉन्ग मैं आपसे बातें करूंगा, तो एक्सिस के अलॉन्ग ये देखिए, मैं फिर से दिखा रहा हूं, केमिस्ट्री है इसमें मैं जेड एक्सिस मान रहा हूं, वाई एक्स, मैथमेटिक्स नहीं है, हमने यहाँ पे एक्सिस कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे किसी तरह की बॉर्डेशन नहीं है। केमिस्ट्री में हम यहाँ पे अगर हमारा मैथमेटिक्स होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स मानते हैं ना। तो ये देखिए पी वाई, पी जेड, पी एक्स, ठीक है, ये चीज ऐसा बनेगा। जेड एक्सिस के लॉन्ग, वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये देखिए ये है आपका पी वाई, इस तरह से अगर आपका बन गया तो ये होगा पी जेड। अगर इस तरह के आपको दिख रहा है तो ये आपका होगा पी एक्स। अराउंड 3 प्लेन्स, तो 3D है, 3D प्लेन में आपका इस तरह का दिखेगा, इसके शेप आपका इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। किसी एक में ही इलेक्ट्रॉन आप फिल करेंगे, किसी एक में, तो दोनों दो है, इसके नीचे हम ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक ब्लॉक में हमारा इलेक्ट्रॉन इसका फील्ड है, ठीक है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम पॉजिटिव भी दिखा सकते हैं, बातें क्लियर। तो मैं यहाँ पे पॉजिटिव भी दिखा सकता हूं, जिधर आप इलेक्ट्रॉन रखेंगे उधर आप प्लस दिखा दीजिए, माइनस दिखा जिधर इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन अगर है तो प्लस, नहीं है तो माइनस। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन एब्सेंस नेगेटिव, ठीक है। प्लस माइनस चार्ज, मैं चार्ज नहीं दिखा रहा हूं, मैं दिखा रहा हूं पॉजिटिव चार्ज क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट देयर, ठीक है। ये चीज आपका पी सबसे डम्बेल शेप की मैं बातें कर रहा हूं, ठीक है भाई। अब आइए थर्ड में बातें कर रहा हूं, डी सबसेल कैसा होगा। आज से फिजिकल सबसेल की ये सारी चीजें श्रोडिंगर ने बताया। थर्ड डी सबसेल, डी सबसेल कैसा दिखेगा, तो डबल डम्बल शेप दिखेगा, ये देखिए डबल डम्बल शेप, ठीक है, ये चीज। अब डबल डम्बल शेप इस तरह का दिखेगा। अब एक्सिस आपके इसके कितने हो जाएंगे वो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो जब भी हम डी सबसेल की बातें करेंगे तो इसको हम एक्सिस पे रख सकते हैं, तो इसके लिए एक्सिस कितने होंगे वही बातें करेंगे, ठीक है। तो डी ऐसा बनेगा। फोर्थ एफ सेल, एफ सबसेल, एफ सबसेल कॉम्प्लेक्स होगा इस तरह के, ये मेरा कॉम्प्लेक्स रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा सबसेल के शेप्स हो गए। अब मैं आपसे बातें करूंगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो क्या हुआ करता है, ठीक है। आइए फिर मैं आपको यहां लेके आता हूं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, पहला चीज आपका था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। थर्ड था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ वन स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। हमने आपसे एक बातें करी, इसका डिनोट कैसा होगा, मैं ऐसे बॉक्स बना रहा हूं, डिनोटेड बाई एन, डिनोटेड बाई एल, डिनोटेड बाई एम, डिनोटेड बाई एस।
n। अब ये आपका n है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, जिसके फॉर्मूला है वो मैं इसके सामने लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है। तो l इक्वल टू, तो हमारे पास l इक्वल टू क्या होगा, n-1। तो जब भी आप l फाइंड करोगे तो क्या करोगे, n-1 करके l फाइंड कर सकते हैं। m फाइंड करना हो तो क्या करेंगे हम, 2l + 1 कर लेंगे, ठीक है। और s की तो बात है, s तो आपका क्या बताएगा, स्पिन्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है भाई। तो अगर ये n की बात है तो n क्या है, तो n इज द 1 2 3, ठीक है। ऐसे आपका ये सेल है, n सेल है, ठीक है। आगे बातें समझ में, ये चीज आपका ओके। चलिए अब मैं आपसे बातें करूंगा तो एक एक करके। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है, n से नोट करेंगे। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में n = 1 मतलब क्या होगा, k सेल, n = 2 मतलब क्या होगा, l सेल, ठीक है। तो बेसिक चीज है, फंडामेंटल चीज है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नोट तो हम कर लेंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ही फंडामेंटल है कि अगर आपका n = 1 है, ठीक है, तो n = 1 इसका मतलब क्यों क्या होगा, k सेल होगा, ठीक है। अगर आपको फाइंड करना होगा कि l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू क्या है, तो l कैसे निकालोगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसमें बोलिए कैसे फाइंड कर सकते हैं आप l। अगर हम एजीमुथल निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, मैं पहला बात कर रहा हूं मैं फर्स्ट, ठीक है। देखिए n = 1 तो k सेल, फर्स्ट न्यूक्लियस, पहले सेल की बात कर रहा हूं, पहले सेल में n = क्या होगा, 1, सेकेंड सेल में क्या होगा, n = 2, थर्ड सेल में क्या होगा, n = 3, 4 में क्या होगा, n = 4, ठीक है। ये हमारा क्या है, सेल है। और पहले वाले n = 1 में क्या बोल सकते हो आप, k सेल, l m और n, ठीक है। ये सेल के हम डिनोट कर सकते हैं। तो l = कितना मिलेगा, n-1, तो कितनी जाएगी, 1-1 तो कितनी, 0, ठीक है। अब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l + 1, तो l की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, तो कितनी जाएगी, 1। अब जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ये बोलता है कि हाउ मेनी ब्लॉक्स, कितने घर होंगे, एक घर बनेंगे। अगर मैं n = 1 की बातें कर रहा हूं k सेल में, l की वैल्यू 0 बोल रहा हूं, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 1। इसका मतलब कि एक बॉक्स बनेगा, 1 ऑर्बिटल्स बनेगा, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम नंबर ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम, देखिए यहां लिखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग इन सबसेल इज 2। तो मैक्सिमम हम 2 रखेंगे अकॉर्डिंग टू, वन इज क्लॉकवाइज, अनदर इज एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक घर में कितने होंगे, 2। एक घर में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रखेंगे। बात है क्लियर। मैं आपको यहां कुछ दिखाना चाहता हूं। मान लीजिए ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे इस घर में हमने कहा 2 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या 2 इलेक्ट्रॉन साथ में से घूमेंगे, देखिए ऐसे साथ में जाएंगे, पॉसिबल है नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे आएगा, यहां टक्कर करेगा, फिर वापस आएगा, फिर टक्कर करेगा, मतलब इतने में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और इतने में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब भी आ रहे तो रिपल्सन करके फिर वापस जा रहे, फिर रिपल्सन करके वापस आ रहे। तो पहला क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, डिफरेंट। तो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी,
अपोजिट स्पिन होगी। तो दोनों का स्पिन हम लिख सकते हैं यहाँ पे। स्पिन क्या है, देखिए ये बातें आप नोट कर लिए, ऊपर लिख लो। एन फाइंड होगी, एन की वैल्यू 1 तो के सेल, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू 1 तो 1 ब्लॉक, 2 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से फिलिंग इज द 2। नाउ एस सबसेट, एस बोलता है स्पिन कितना, स्पिन तो ठीक है, मैं यहां पे देख रहा हूं एन इक्वल टू 1 निकाल लिया, सेकंड भी निकाल लिया, थर्ड भी निकाल लिया, 4, आखिर स्पिन क्या होगा। तो स्पिन बॉक्स के अंदर आप ध्यान से देखिए, +1/2 एंड -1/2, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों की डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, इसलिए मैं क्या दिखा रहा हूं, प्लस माइनस, आधा इधर घूमेगा तो आधा इधर घूमेगा, -1/2 से +1/2, ठीक है, -π से +π, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये स्पिन बताएगा, नोट कर लीजिए। अब इसके जो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एस सब सेल, इसे बोलेंगे एस सब सेल। ये देखिए, तो एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, हम इलेक्ट्रॉन्स में एस सब सेल 2। तो पहले में क्या मिलेगा मुझे, के सेल के अंदर यहां मिलेगा एस सब सेल, एस मिलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो के सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 1, सेल इज द 2, एस इज द 2, राइट। नाउ सेकेंड वन, अब मैं आपसे दूसरी बात करता हूं, जब n इक्वल टू 2 हो जाए तब क्या होगा, एल सेल होगा, n इक्वल टू मतलब क्या, एल सेल। अब देखना ये है कि एल सेल में कितने सब सेल आएंगे, के सेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एस सब सेल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन से एल सब सेल, ठीक है। देन n इक्वल टू n-1, हाउ मच, 2 - 1 1, azimuthal quantum number, secondary quantum number also, m equal to, tell me, 2l plus 1, that is the 2 plus 1, 3, 3 means 3 block are there. अब in one block how many electrons, maximum number of electrons, 2 in how much, 2 electrons in their opposite spin। ये देखिए सभी अपोजिट स्पिन भर रहे हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, टोटल इलेक्ट्रॉन इज 6 and it is known as P सब सेल, इसे बोलते हैं P सब सेल। ये आपका क्या है, P सब सेल है, देखिए P सब सेल। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, M की वैल्यू कितनी है, 3 ब्लॉक 6 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे हम, 6 रखेंगे, ठीक है। आई बात है सब में, या अब इन तीनों का नाम है, जैसे हमने को बोला पी ब्लॉक का, पी ब्लॉक में कैसे नाम देते हो आप, ऐसे देखो, ये आपका पी ब्लॉक हो गया, इलेक्ट्रॉन्स भर लिया, 2 2 4 2 6, इसका नाम हो गया पी एक्स, पी वाई, पी जेड, तीनों एक्सिस में, तीनों एक्सिस में इलेक्ट्रॉन घूमेंगे। आप यहां देख लीजिए,
ये 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्सिस के लॉ, जेड वाई और एक्स प्लेन, इस तरह से रहेगा। क्लियर? अब n=3 हो जाए तब क्या होगा? देखिए बिल्कुल ही आसान है, आप बिल्कुल बना सकते हैं। मैं आपसे डी की बातें कर रहा हूं, n=3। सिर्फ मैं आपसे अभी कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, आप देखिए बिल्कुल आसान है। थर्ड, n=3, जब n=3 होगा तब मैं क्या बोलूंगा आपसे कि n की वैल्यू कितनी होगी, n-1 करिए, 3 - 1 2, m = 2l + 1, how much? 2 to the 4 1 5, means 5 block are there, 5 block are there. How many electrons? 2 2 4 6, 2 2 4 2 6, 6 2 8 और 2 10। डी सबसेल, डी सबसेल डंबल से दिखेगा आपको, यहां देखिए, ये इसका नाम होगा DXY, DYZ, DXZ, इसका नाम होगा DX² - Y², और इसका नाम होगा DZ²। 5 ऑर्बिटल्स, पांचों के नाम होंगे अलग अलग, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग। मैं इन सब किससे बताऊंगा आपसे, आप इनको बराबर देखिए, और इसका नाम है डी सबसेल, डी सबसेल ऐसा दिखेगा, ठीक है। आई बात समझे? जी बिल्कुल आसान। एफ सबसेल n=4 मैं फाइंड कर रहा हूं, ये आपको यहां देख पा रहे हैं आप, इसका नाम है डी सबसेल। डी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन, आप काउंट कर लीजिए, 10 इलेक्ट्रॉन ही होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बात कर n=, अब मैं 5 बात करूंगा। n= अगर हमने 4 रखा तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 4 रखे तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n-1 तो 3, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2l + 1, 2 3 6 1 7, मीन्स 7 ब्लॉक आर देयर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 1 7 electrons filling, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. This is the, how many electrons are there, 14 electrons. F subcell, yes, this is the F subcell, ठीक है। चारों सबसेल के मैंने आपको दिखा रखा है, आपको फाइंड करना रहेगा m, आपको फाइंड करना रहेगा l, ठीक है। क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में आपको इस तरह से दिया रहेगा कि हाउ टू फाइंड m और l, ठीक है। काफी बेसिक, मैं ज्यादा आपको और डिफिकल्टी लेवल पे नहीं लेके जा रहा हूं, अभी आप बिल्कुल सिंपल वे में समझिए ताकि बहुत सारी चीजें आसान हो जाए। तो पहले वाले में अब मैं आपको यहां से दिखाऊंगा कॉन्फ़िगरेशन, तो कॉन्फ़िगरेशन आप मुझे बना के दिखा सकते हैं, देखिए। अब आप सबसेल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, तो सबसेल के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे बनाओगे वो चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूं। आपने सेल के ऊपर तो बना रखा है, अब मैं आपसे सबसेल के बारे में बात कर रहा हूं। तो एक प्रिंसिपल मैं आपको दिखा रहा हूं यहां से, अबाउट प्रिंसिपल, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप पूरे 118 एलिमेंट का, मैं आपको 118 एलिमेंट याद नहीं करना है, आपको एक कविता में आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा। तीसरे चैप्टर में
आपको मैं 118 एलिमेंट का सुनाऊंगा। जैसे पहला सबसेल आप देखोगे, सबसेल में एस ब्लॉक, ठीक है, लीना ने की रब से फरियाद। फर्स्ट ब्लॉक अल्कली मेटल्स, लीना ने की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, आफ्टर दैट डी ब्लॉक, आफ्टर दैट पी ब्लॉक। पी ब्लॉक मीन्स बैगन आलू गाजर इन थैली। 13 14 काशी गए शिव प्रभु। 15 नाना पाटेकर सोना सब बीमार। 16 ओ सलमान सीरियसली प्रॉब्लम। 17 फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। और 18 ग्रुप इज द नोन एज हीलियम यन आर्गन किटवन जनन और रेडन। मैं इसके बारे में नोट कराऊंगा एक एक चीजें, बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अबाउट प्रिंसिपल की मैं बातें करूं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s 5p 5d and 5f 4f 6s 6p 6d 6f 7s 7p 7d 7f, ठीक है। दिस इज द ऑर्डर। हाउ इलेक्ट्रॉन्स रहे सब सेल, मैक्सिमम 2, मैक्सिमम नंबर इलेक्ट्रॉन से s 2, maximum electrons in p 6, maximum number of electrons in the d subset is the 10, maximum number of electrons in the s subset 14. ओके, नाउ आप मुझे देखो कैसे मैं जा रहा हूं, ये देखिए, ये पहले ऐसे जाना है, फिर इस तरह जाना है, फिर ऊपर, फिर ऐसे, फिर इस तरह से जाना है आपको, फिर इस तरह से जाना है, फिर ऐसे आना है काटते हुए, फिर ऊपर जाना है, फिर इधर आना है ऐसे बिल्कुल, फिर ऊपर जाना है, फिर नीचे आना है, ठीक है, फिर ऊपर जाना है, फिर ऐसे, फिर इधर, फिर ऐसे बाहर निकल जाना। आप मुझे देख पाए कि मैं कैसे गया? देखिए, पहले काटते हुए फिर ऊपर जाना है, फिर इसको काटते हुए फिर ऊपर जाना है, मतलब सांप की डायरेक्शन में घूमना है। जैसे मैं गया वैसे वैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, पहले मैंने क्या लिखा, 1s2, उसके बाद क्या आएगा 2s2, उसके बाद क्या आएगा ऊपर 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद 5s2, उसके बाद 4d10, उसके बाद 5p6, उसके बाद 6s2, ठीक है। फिर ऊपर आ जाइए, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2, ठीक है। देखिए 7s2 में यहां पहुंच गया, फिर उसके बाद ऊपर आ रहा हूं मैं, ठीक है। फिर ऊपर देखो 4f 7s 5f 5f14, 6d10, 7p6, 6f14, 7d10, 7f14, बस। अब आप काउंट करिए, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स कितने, केवल इलेक्ट्रॉन गिनना है मुझे, 118 तक आके रुक जाना है। 2 2 4 4 4 6 10 12 6 18 2 20 20 10 30 30, मतलब जिंक आ गया 30 30 36 36 क्रिप्टन 36 36 और 2 38 38 10 48 48 और 6 48 50 54 54 55 56 56 और 14 70 70 10
80, 80 और 6 86, 2 88, 88 और 14 88 और 90 100 102, 102 10 112 और 6 106 18। यहां तक आपको मिलेगा 118 एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन। जोड़ लीजिए आप, 118 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इज इट राइट? आप इसे नोट कर लीजिए। फिर मैं आपको दिखाता हूं किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ये आपने लिख लिया, इसे लिखेंगे और इसे लिखेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे आप इसको किस तरह से जा रहा है। अब तो बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। देखिए, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे मैं सोडियम की बातें करूंगा, Na11 क्या आपने पढ़ा है? 281 होना चाहिए। ठीक है, आइए यहां से देखते हैं। 2 2 4 6 10 1 11, एक इसमें लोगे, लिखू मैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। बोलो पहले सेल, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? के सेल में 2। सेकेंड सेल में हम इलेक्ट्रॉन 6 to 8। के बाद क्या आता है? एल में हम इलेक्ट्रॉन्स 8। थर्ड सेल के एल एम इज द थर्ड सेल, थर्ड में हम इलेक्ट्रॉन्स 1। बिल्कुल आसान। जैसे आपने सेल लिखा उसी तरह आपको सब सेल में देना है। ठीक है, अगली बात सब में नोट बना सकते हैं। अब मैं आपसे बातें करूं पोटेशियम के 19। ठीक है, क्या होगा? आप क्या बनाते हो? 288। ठीक है, 1। आइए देखते हैं। 2 2 4 6 10 12 12 and 6। हाउ मच? 18 and 1 19। जहां तक जितने आएगा वहां तक ही लेना मुझे, है ना? नहीं तो उससे ज्यादा आप लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक नंबर मिलेगा आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 19 हो गए। पहला सेल के एल एम एन। K cell 2 electron, L cell 6 to 8 electrons given, M cell 6 to 8 electron, N cell 1 electron. Is it right or wrong? Correct. ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, यस, सॉल्व इट, बना लीजिए। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं इसके अकॉर्डिंग। हो गया जी, ये आप नोट कर लीजिए। Homework: write all electronic configuration according to above principle up to 1 to 30 एटॉमिक, 1 से 30 तक एटॉमिक नंबर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाउ प्रिंसिपल पे इस तरह के बनाना है आपको। ठीक है, ओके, बना सकते हैं। गुड।